Evening, everyone. So, uh, we are in fluid mechanics, and obviously, we start with one numerical and then we move on to the next part, that is the principle of continuity and Bernoulli's theorem. That is today's topic, which is very, very important. So, let's start with the numerical first. The question is that I just want to read out the question and I give you 2 minutes for that. You try to solve it. The question is that a block of wood weight 12 kg. A block of wood weight 12 kg in air. Okay. And has a relative density 0.6. So what is the relative density? Relative density is 0.6. Okay. It is to be in water with 0.9 of its volume immersed. So V in is 0.9 of the total volume. V in is 0.9 of the total volume. Sir, what is this V in? V in मतलब volume inside the liquid means water. अच्छा मतलब इस ब्लॉक ऑफ वुड को जब पानी में डालेंगे तब Yes. Hmm. Volume immersed. What weight of a metal is needed if the metal is on the top of the wood, if the metal is on the is attached below the wood? Relative density of metal, 14. So in the first part, suppose this one is water, this one is water, and suppose this one is wood block. So how much is inside the water? V in. Okay, V in. And number one, what is the mass M if the mass is, what is the mass M if the mass is on the top of the wood? And number two, the second question, first you try the first question, and the second question is same question. That block is, the metal block is inside the, which is attached to the wood. Are you understand what is my question, or what they ask you? A block of wood No, weight sir. 12 kg in air, relative density 0.6, relative density 0.6. It is to be in water, so that liquid is water with 0.9 of its total volume immersed. Total volume का 0.9 immersed है, ठीक है? If immersed, what weight of a metal is needed? Number one, if the metal is on the top of the wood. Number two, number two, if the metal is attached below the wood. तो इस ब्लॉक का, इस मेटल ब्लॉक का मास कितना है? I give you 2 minutes for that. Okay. Hello. See, let for the first question, let mass of the metal block is M and the mass of the wood is given 12 into G, that means weight, is the amount of water displaced. So density of water, G, and volume inside the water. Now density of water is 10 to the power 3 because the mass is in kg, G, and the volume is 0.9 V. Now you need that volume. So for volume, you have, for volume you have 12 kg mass. 12 kg is the mass. 12 kg is the density. 0.6 into 10 to the power 3.
because relative density into density of water, you get the density of the wood and the volume. So you get the volume of the wood is 12 kg by 0.6 into 10 to the power 3. So if you put this volume here, we have 10 to the power 3 g 0.9 into 12 by 0.6 into 10 to the power 3. So now this 10 to the power 3, 10 to the power 3 cancel. This G cancel. So M plus 12 is equals to, you can cancel this 3, this 2, this 6, so 18. So mass is 18 minus 12, that is 6 kg. Is it okay, everyone? Yes, sir. Everyone, you understand this part? Yes, sir. Now in the second part, this question, see, everything is same with this question, but the problem is that now you have two objects inside the liquid. One is the wooden block as well as the metal. So if you want to solve this question, this is for the first part. Now for the second part, means relative density कोথায় is? the relative density is 0.6, volume 12 by 0.6 into 10 to the 3. First part lagbe na because it is on the top. Now in the second part, second question, you have two block inside. One is wooden block and the second one is the metal block. So density of water, gravity and volume of the metal for the second question. This is for the now second question. So mass is m, we suppose here in the second question. Relative density is 14 because now it is inside the liquid, so it will also displace some amount of water. 10 to the power 3 is the density of water into V metal. So V metal is metal by 14 into 10 to the power 3. So now we can put 10 to the power 3 G V metal, that is M by 10 to the power 3. So you can cancel this 10 to the power 3. Acha, you have into 14. So what you have plus M by 14. So because of that, now you have plus M by 14. So M 1 minus 1 by 14, that is 18 minus 12, that is 6. So M 14 minus 1 by 14, that is 6. So M is 6 into 14 by 13, which is nearly 6.5 kg. Okay, everyone. Yes, sir. Sir, can you explain me that situation? Like that first part, I did not understand. Like in the first case, you took the metal first and the top, and then at the bottom. Yeah, Then these how are did the you two derive the part of the equation? question. Wait. These are the two part of the question. In the second part, metal is attached to the bottom of the wood, and in the first part, metal is put on the wood, means on the top of the wood. Yes, sir. So I did not understand that. How did you take out that equation? Can you just explain that? See, in the first case, as this is the block and metal is on the top, so how many weight you have? Mass of the metal plus mass of the wood. So I write mass of the metal and plus mass of the wood. Mass of the wood is given 12 kg. Yes, sir. And into G means gravity. So you get the weight. And now this weight is the amount of liquid displaced. How much amount of liquid? Who is the liquid? Water. So 10 to the power 3 G. And how much volume inside the wood? Means how much of the wood inside the water? 0.9 V. Is it okay? So you understand that part? You understand that part? Yes, sir. Now V is the total volume of the wood. So how you get the total volume of the wood? Total mass of the wood is 12 kg. Relative density of the wood is 0.6. So 0.6 into density of water. Why we put 10 to the power 3? Because it is in the SI unit. Water का density जो होता है वो 1 ग्राम पर सीसी होता है या तो 10 to the power 3 kg per meter cube होता है.
as it is in SI unit, so we put 10 to the power 3. So from this we get the overall total volume of the wood. We get the total volume of the wood. So we put V is 12 by 0.6 into 10 to the power 3. Now 10 to the power 3, 10 to the power 3 cancel. This G and this G cancel, and 0.9 into 12 by 0.6. So that whole part become 18. You understand? Yes, sir. So, and then M plus 12 is 18, you get the value of M. This is the first part. Now in the second part, when you attach it to the bottom, so extra amount of water displaced due to the metal, as the metal is inside the wood. So it is Yes, now inside the water. So that extra amount of water displaced because of the metal. So density of water G and V, volume of the metal which is attached. So how you get the volume of the metal? Let here we suppose the mass of the metal is M, because we don't know, but we know the relative density 10 to the power 14 and into 10 to the power 3. Why 10 to the power 3? Because we convert it all in SI unit, means we expect the value in kg and Vm. So we get the value of Vm M by 14 into 10 to the power 3. Now this 10 to the power 3, 10 to the power 3 cancel. This G and this left side and right side cancel. So here you can write G and then you can cancel this G. Okay. Now it's yes, okay. I got it. So this is a very good question from these all are entrance exam question. Okay. Now we move on to the next part, which is called principle of continuity. Okay. So what is principle of continuity and why it's principle of continuity? আমাদের ওয়েব সিলেবাসে নেই না See? ওয়েব Waves. I don't know. If I have time, I go through all this because these are the backbone of your physics. Okay. স্যার আমাদের 18 ফেব্রুয়ারির পর परीक्षा तो अरे परीक्षाते तो पास कर ही जाएगा, जहां तक पढ़ाया है उतना भी पढ़ेगा तो पास कर जाएगा, पास ही तो करना है। देखो ध्यान से सुनो। हाँ, इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड, ये दोनों का मतलब क्या? इनकम्प्रेसिबल मतलब यू आर नॉट एबल टू कंप्रेस इट, नॉन विस्कस मतलब फ्लूइड जिस सरफेस के ऊपर से जाता है उसमें कोई भी फ्लूइड चिपक के नहीं रह जाएगा, मतलब अटक के नहीं रहेगा। जैसे तुम लोग अगर रिफिल देखते होंगे तो किसी किसी रिफिल में देखना इंक जब खत्म होता है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है। ये कभी गौर किया है इस बात को? हाँ सर। हाँ, सो जिसमें ये 6 kg जिसमें वो तुम्हारा एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, दैट इज नॉन विस्कस, मतलब वो सरफेस के साथ चिपकेगा नहीं। तो इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि अगर मेरा क्रॉस सेक्शन कहीं पे भी सेम नहीं हो, सो इन दैट केस area into velocity is always remain constant. That is called equation of continuity. मतलब area and velocity they are inversely proportional to each other. मतलब अगर area बढ़ेगा velocity घटेगा, अगर area घटेगा velocity बढ़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, तुम लोग कभी भी पाइप लेके पौधे पे पानी दिया होगा या साइकिल बाइक फोर व्हीलर धोया होगा, जब तुम लोग धोता है ध्यान देके देखना, अगर थंब को उसका जो पाइप का एरिया है उससे छोटा कर देते हो तो वाटर का जो फ्लो का जो स्पीड है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, लेकिन वाटर रुकता नहीं है। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो एक्चुअली रिमेन कांस्टेंट। सो अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो को कांस्टेंट करने के लिए इफ द एरिया डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ से एक लिक्विड को फ्लो कराऊं, यहाँ से जितना लिक्विड फ्लो करेगा यहाँ से उतना ही लिक्विड फ्लो करेगा। मतलब अगर ये मेरा V1 ये A1 है, ये A2 ये V2 है, सो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, इसीलिए इसको कहा जाता है कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट आया है द अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो पर यूनिट टाइम रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? रो इज द डेंसिटी इनटू चेंज इन वॉल्यूम बाय dt। चेंज इन वॉल्यूम माने स्मॉल t टाइम में
मानो dx अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो किया, तो इसका कुछ एरिया है जरूर, सो दैट इज इक्वल्स टू रो इनटू एरिया इनटू dx बाई dt। अब देखो dx बाई dt क्या होता है, dx बाई dt होता है स्पीड और वेलोसिटी, सो ये मेरा एक्चुअली कांस्टेंट है। अब एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट बाय डेंसिटी, हम लोग कांस्टेंट बाय डेंसिटी इसलिए किया, इनकम्प्रेसिबल कहने का मतलब है अगर इनकम्प्रेसिबल नहीं है तो उसका डेंसिटी सेम रहेगा। मतलब अगर मैं टैप खोल रहा हूं और अगर वो टैप पानी का टंकी से कनेक्टेड है, तो जब मैं टैप खोलूंगा मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि टैप का जो टैप जो है उससे पानी निकलेगा, ना कि ग्लिसरीन या पेट्रोल या डीजल निकलेगा। इज इट ओके? नहीं समझा सर। तुम स्कूल में गया, टैप पानी का टैप खोला और पानी पीने के लिए मुंह ऐसे किया, तो जब तुम मुंह ऐसे किया क्या एक्सपेक्ट करेगा, हाथ में पानी गिरेगा या केरोसिन गिरेगा या पेट्रोल गिरेगा? पानी गिरेगा सर। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी है। यस सर। तो मतलब डेंसिटी अगर चेंज हो जाता तो पानी की जगह पे केरोसिन भी गिर सकता था ना। कैसे सर? अरे अलग अलग लिक्विड मतलब अलग अलग डेंसिटी ना, ओ अच्छा, हाँ वैसे, हाँ समझ गया। समझा ना? तो इसका मतलब डेंसिटी इज आल्सो रिमेन कांस्टेंट ना, यस सर। इसलिए हम कांस्टेंट में डेंसिटी को भी रख देते हैं। सो मेरे पास आ गया एरिया इनटू वेलोसिटी। इज इट क्लियर? यस सर। अब मैं तुम लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूं। ये है एक टैब, हाँ, ये स्टेशन का टैब हो सकता है, तुम लोग का स्कूल का टैब हो सकता है, पानी पीने का टैब, हाँ। यहाँ पे एक नल है, मतलब उसको खोलने के लिए, तो यहाँ से पानी ऐसे गिर रहा है। अब तुम्हें इसमें से ऑप्शन दिया गया, कौन सा ऑप्शन में पानी गिरेगा, मतलब पानी दिखना चाहिए। चौथा वाला तो होगा ही नहीं, एबीसी में बोलो कौन सा होगा। सर बी। ए होना चाहिए। बी। हाँ? बी। ए। देखने में लगता है सी होना चाहिए। तो ये जो सी जो होता है उसमें क्या होता है, ताकि देखो टंकी में क्या होता है ना, जब बोरिंग से पानी आता है, अगर वो वाटर ट्रीटमेंट किया भी है, तो कभी कभी क्या होता है ना, टैंकी अगर प्रॉपरली साफ नहीं किया है तो उसमें डास्ट पार्टिकल वगैरह जम सकता है, कभी कभी फंगस वगैरह बन पड़ सकता है, तो वो सीधा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तुम उसको पी लोगे तो क्या होता है ना, आदमी अगर देखता है कि हम कुछ गंदा चीज पिया है तो उसको मेंटली एक इफेक्ट पड़ता है। इसलिए क्या करता है, इसमें ना नेट लगा देता है ऐसे करके, तो इस नेट के कारण ये पानी एक्चुअली ऐसे फ्लो होता है, ठीक है, जो तुम्हें ऐसा दिखता है, ठीक है। पर यहाँ पे तो कोई नेट नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ये साइड वाला का कोई काम नहीं है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब जब नीचे की तरफ जाएगा, मुझे एक बात बोलो, when the fluid is moving या when the water is moving down, इसका इसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करेगा। तो अगर ड्यू टू ग्रेविटी इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। यस सर। हाँ सर। अंडरस्टैंड? जैसे जैसे ये नीचे जाएगा ये पॉइंटी हो जाएगा, मतलब इसका जो है वेलोसिटी के कारण इसका एरिया घट रहा है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। सो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोला जाता है। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच यू हैव इन योर सिलेबस आल्सो, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो बर्नौली ने क्या कहा था, पहले मैं ये बता देता हूँ, एक बार रीड आउट करता हूँ, फिर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका प्रूफ तुम लोग कैसे करोगे। बर्नौली ने यह बोला था कि इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो, स्टेडी मतलब द फ्लो इज वेरी रिदमिक, नॉट टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब इधर उधर एकदम, मतलब पानी को देख के डर लगेगा, दैट इज कॉल्ड द टर्बुलेंट वाटर। ओके, जैसे तुम लोग अगर कभी गाजोल डोबा गया होगा, तो गाजोल डोबा में जब वो डैम का पानी खुला हुआ रहता है
स्पेशली रेनी डे में, तो नीचे में तरफ देखने में थोड़ा डर लगेगा। कभी कोई गया है गाजलडोबा, तीस्ता बैरेज का पानी छोड़ते हुए देखा हाँ है? सर। छोड़ते हुए तो नहीं देखा, लेकिन गया हुआ है। मतलब वो जो एक दो देखना गेट खुला हुआ रहता है जिससे पानी निकलता है, देखा है कभी? हाँ सर দেখেছি। हाँ, तो उसमें देख के क्या मन करता है, कूद जाए, या नहीं ये सर। लगता है, या ऐसा लगता है कि बाप रे अगर गिर गया तो खत्म, क्या लगता है? अगर गिर गया तो खत्म। गिर गया तो खत्म, मतलब वो देख के डर लगेगा, एकदम चारों तरफ झांक झांक वाइट वाइट, सो दैट इज कॉल्ड द टर्बुलेंट। और जो जो स्ट्रीम लाइन है वो कभी की कल्पना है, जैसे एकदम स्मूथ क्रिस्टल क्लियर कल 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 करके पानी जो फ्लो होता है, जैसे समर में देखना, समर में जो तुम्हारा जो वाटरफॉल होता है, जो वाटरफॉल नीचे आने के बाद जो देखना धीरे से जाता है, एकदम धीरे धीरे कल 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 करके एक आवाज में लग रहा है एक कांच ऊपर से बह के जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। और वही रेनी डे में, वही वाटरफॉल में तुमको पैर रखने में डर लगेगा कि बाप रे लेके भाग जाएगा। यू अंडरस्टैंड? यस सर। सो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। जिसका एक बहुत स्मूथ फ्लो होगा वो है स्ट्रीमलाइन। सो इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो, এটা আমরা ভুল পড়তেছি না? কেন না মানে পরে তো এটা আবার চেঞ্জ হয়ে যায়। এটা চেঞ্জ হয়ে যায়? সিমলেস তো থাকে না না? না, ওর যদি তুমি স্পিড বাড়াও তাহলে থাকবে না। তো একটা পার্টিকুলার পোর্শন পর্যন্ত থাকে যেটাকে বলে রেনল্ডস নাম্বার। অভিরূপ তুই বেশি পড়ে ফেলতেছিস। In case of steady flow of incompressible and non-viscous fluid through a tube of non-uniform cross section, तो मेनली तीन चीज याद रखना है, स्टेडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, तीनों के बारे में आप तुम जानते हो, एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म अब क्या बोलना है, तो इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड नॉन यूनिफॉर्म fluid through a tube, the sum of, ध्यान से सुनो, the sum of pressure plus the sum of pressure, क्योंकि sum बोल दिया तो प्लस बोलने की जरूरत नहीं है, sum of pressure comma potential energy per unit volume comma kinetic energy per unit volume remain constant. Is it clear? मैंने क्या क्या बोला, प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज रिमेन कांस्टेंट। ये कहा गया था बर्नौलीज थ्योरम, मतलब बर्नौलीज थ्योरम। और इससे जो डिराइव करके जो वैल्यू आएगा वो आएगा प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट, वेयर रो इज द डेंसिटी। इज इट क्लियर एवरीवन? অভিরূপ বুঝছো? অভিরূপ, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ। অনন্যা, यस सर। বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ স্যার। তোমার দাদা ভাই এসছে? স্যার এসে চলে গেছে। এরকম বাজে হয়ে গেছে, তোমার দাদা ভাই দেখাও করে না আমার সঙ্গে। তোমার দাদা ভাই খালি তোমার একটা বন্ধুর সঙ্গেই দেখা করে। দাদা ভাইকে বলো আমাকে কল করতে, আমি খুব খারাপ পেয়েছি। अच्छा, सो अब मुझे देखो ये प्रूफ करना है, ठीक है? तो ये प्रूफ कैसे करेंगे, देखो दिस प्रूफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बर्नौली स्टेटमेंट एंड दिस प्रूफ इज ऑलमोस्ट 5 marks question. So I again repeat what is the statement. अच्छा, statement is that in case of steady flow of incompressible और क्या था, non-viscous, incompressible and non-viscous fluid, incompressible and non-viscous fluid of non-uniform cross section, non-uniform cross section, the sum of pressure, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume remain constant. अब देखो मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, मानो ये ऐसे करके है, ठीक है?
तो ये है एक पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट, ये है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. So let this height is h1 and let this height is h2. ठीक है, यहाँ का पॉइंट को हम B माना, इसका पॉइंट को C माना, क्योंकि एरिया फॉर एरिया 1, एरिया 2, प्रेशर 1, प्रेशर 2, वेलोसिटी 1, वेलोसिटी 2, और इसके अंदर से देखा की करते चीज जा, एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, ऐसे करके. इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया सबको? यस सर. Yes, sir. सो अब मुझे यहां से ये प्रूफ करना है कि रो सॉरी P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब मैं इस लिक्विड को यहां से यहां ले जा रहा हूं, सो मेरा वर्क डन हो रहा है Yes, ना. sir. सो हम फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, हम पूरा लिक्विड को तो नहीं ले जा रहा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड को ले जा रहा है. सो लेट इन टाइम dt del m amount of liquid flow from B to C. Is it clear? Let in time dt del m amount of liquid flow from B to C. Is it clear? Yes, sir. So work done for that liquid, work done. देखो अब मैं एक बात बताने वाला हूं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू dx. इज इट क्लियर? इज इट ओके? Sir, yeah, what is del X? चेंज इन डिस्टेंस. अच्छा. तुम तो पूरा को नहीं ले जा रहा, डेल एम मास को ले जा रहे हो, तो वो मास मानो इतना डिस्टेंस मूव किया डेल टी टाइम में. समझ में आया? Got it, sir. हाँ. सो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. तो फोर्स क्या हो गया? प्रेशर एरिया इंटू डेल एक्स. तो ये जो है इसका जो एक वेरी स्मॉल टाइम में जो एरिया है डेल एक्स है. इज इट क्लियर? तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर इंटू डेल वी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? area into del x is the del v ना, तो pressure into del v is work done. Is it okay? Is it okay? Yes. तो देखो मुझे ये बात दिखाना नहीं है, मुझे ये बात डायरेक्ट लिखना है. मैंने यहाँ पे दिखाया ये बात ताकि तुम लोगों को समझाने के लिए कि ये प्रेशर वर्क डन इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम आया कहां से? तो यहां से आया. ठीक है, सो दिस वर्क डन इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. ये जो प्रेशर है दैट इज द चेंज इन प्रेशर. कहां से कहां? यहां से यहां. दोनों का प्रेशर का डिफरेंस के कारण वो मूव कर रहा है ना, है कि नहीं? बोलो. हेलो. Yes, sir. So we can write P1 minus P2 del V. Let it be the equation number 1. So work done to move the del m amount of fluid for del t time from B to C is P1 minus P2 into del V. अब ये जो work done हो रहा है, this work done perform in two ways. One is called the change in potential energy. Another one is called the change in kinetic energy. Agree or not? Tell me. यहाँ से यहाँ गया, हाइट चेंज हुआ और स्पीड चेंज हुआ. So in terms of potential energy and in terms of kinetic energy, is it okay? Yes, sir. So this work done perform in terms of change in potential energy. तो change in potential energy में क्या हो जाएगा? Final potential energy del mg h2 minus del mg h1. समझ में आया?
Yes, Yes, sir. sir. and change in kinetic energy क्या होगा? Half del m v2 square final minus half del m v1 square initial. So let it be equation number 2. Let it be equation number 3. Is it clear? Yes, sir. So now we can say कि this work done is performed in terms of change in potential energy and change in kinetic energy. So P1 minus P2 into del V, that is del M G H2 minus H1 plus del M plus half del M V2 square minus V1 square. Got it? Is it okay, everyone? Yes, sir. So can we divide it by volume? P1 minus P2, that is del M by del V G H2 minus H1 plus half del M by del V V2 square minus V1 square. Is it okay? Okay. Yes or no? Yes, sir. अब एक बात मेरा पहले देखो, हाँ, ये है वर्क डन, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी. अगर मैं इस वर्क डन से इस वॉल्यूम को निकाल के रख दूं तो क्या हो गया? यहाँ पे प्रेशर बच गया. तो प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. समझ में आया क्यों बोला है सम ऑफ द प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी? देखो, जब मैं इस वॉल्यूम से डिवाइड किया तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हुआ ना, और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हुआ कि नहीं? बोलो yes or no? अरे yes or no, anyone tell me. If you have any doubt, you can tell me. Up to this, okay? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बोलो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? Mass Density. by density. So we can write it rho g h2 minus h1 plus half rho v2 square minus v1 square. अब सब एक को वन साइड में रखो. p1 plus rho g h1 plus half rho v1 square, p2 plus rho g h2 plus half rho v2 square. अब तुम देखो, ये जो है प्रेशर रो जी h1 क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. हाफ रो v1 स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो इधर का प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट. दोनों का वैल्यू सेम है. मतलब P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज कांस्टेंट. इज इट क्लियर? Yes, sir. So this is the main thing for Bernoulli's theorem. This derivation is very, very important. Means they can ask you statement and this derivation 5 marks question. कभी कभी एग्जामिनर लोग थोड़ा बदमाशी करता है कि एग्जामिनर लोग पूछ दिया कि Bernoulli's theorem depends on which factor. अब बच्चा कंफ्यूज कि सर ने तो नहीं बताया था फैक्टर. हाँ, कौन सा फैक्टर के ऊपर ये क्या पूछ दिया है? अरे बाबा, डेफिनेशन देखो ना. इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो, सो द फ्लूइड मस्ट बी स्टेडी. incompressible liquid, so fluid must be incompressible. Non-viscous fluid, the fluid must be non-viscous. Non-uniform cross-sectional area of the tube, so the tube must be non-uniform cross-sectional area. Are you getting my point? Yes, sir. तो Yes, क्या sir. मैंने नहीं पढ़ाया कि it depends on which factor? Bernoulli's theorem depends on which factor? क्या मैंने नहीं पढ़ाया? समझा? अरे डेफिनेशन हाँ सर, नहीं समझा. है, स्टेडी फ्लो. तो
ये कंडीशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म ये कंडीशन हो गया, नॉन विस्कस ये कंडीशन हो गया, इनकम्प्रेसिबल ये कंडीशन हो गया। डन एवरीवन। अब Yes, देखो sir. इसके ऊपर हम लोग अभी कुछ न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल करेंगे और इसका कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे आज के लिए। फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाला क्लास में इसका और भी बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज पढ़ेंगे। लेकिन आज इसका पहले एप्लीकेशंस देख लेते हैं। कुछ कुछ एप्लीकेशंस आज देखेंगे जो इजी एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशंस उसका जो मेन हमारा सिलेबस में है वो एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट दिन देखेंगे। एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं इसका एप्लीकेशंस पे आऊंगा। हाँ, द क्वेश्चन इज, यस, सी आई वुड लाइक टू रीड द क्वेश्चन। A horizontal pipeline, carries water in a streamline flow. तो सबसे पहला बात है पाइपलाइन हॉरिजॉन्टल है। What do you mean by horizontal? कि height in both the sides same. Is it clear? Yes, sir. A horizontal pipeline carries water in a streamline flow at a point along the pipe where the cross-sectional area is 10 centimeter. So let the area is 10 centimeter square. The water velocity V1 1 meter per second, and the pressure is 2000 pascal, and the pressure is 2000 pascal. What is the pressure of water at another point where the cross-sectional area is where the, so this is the question. So let this area is large area and this area is small area. Exactly middle पे होगा। हाँ, मैं तो थोड़ा अंदाज में दिया ये। And horizontal means either it is on the ground or these two base are equal. That means H1 is equals to H2. Are you getting my point? Is it clear? तुम्हारा Yes, sir. प्रेशर P1 है, तुम्हें प्रेशर P2 पूछा है। Problem is that you don't know velocity also. But from the equation of continuity, you can easily say A1 V1 is A2 V2. So on that basis, 10 into 1, that is 5 into V2. So V2 is 2 meter per second. So you now find out the value of 2 meter per second. As you find out the value 2 meter per second, now we can use the equation, Bernoulli's theorem, P1 plus rho GH plus half rho V1 square, P2 plus rho GH plus half rho V square. If you notice it, you can understand rho GH दोनों तरफ same है, so you can cancel it, or even you don't write it, no issue. If we not write it, then also it doesn't matter. So तुम्हें शायद बुक में ये rho GH लिखा हुआ भी नहीं रहे, लेकिन rho GH था वो cancel हो गया. Is it clear? Now pressure is given 2000 Pascal, half SI unit. What do you mean by SI unit of water? 10 to the power 3, velocity 1 square, P2 you don't know, half 10 to the power 3 into 2 square. So what you have, 2000 plus 500 equals to P2 plus 2000. So P2 is 2500 minus 2000, that is 500 Pascal. Is it clear? Okay, everyone? Yes, sir. Okay, after that, देखो मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? Suppose we have a pipe, horizontal pipe like this. Okay. And on the basis of that pipe,
Suppose we want to draw a velocity versus distance graph, and the second one is pressure versus distance graph. Tell me what is the shape of the graph? So obviously what happened if the fluid is flowing through this? So in this one, area large or small? In that part, the area is large or small? Hello? Small, sir. Because area small, Large, sir. Large, sorry. large. So if the area large, so velocity increase or decrease? Decrease. Decrease, sir. So up to that, the velocity is very less. Now the area is decreasing. So velocity is increasing, and then the area remain constant, velocity remain constant. So we can draw velocity distance graph. Now from P plus rho gh plus half rho v square is constant, Bernoulli's theorem. This one is same because it's a horizontal pipe. Now if the velocity increase, pressure increase or decrease? This plus this is constant. अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? कांस्टेंट का मतलब क्या है? कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो. हेलो. सब प्रेशर डिक्रीज होवे. कांस्टेंट का मतलब है कि ओवरऑल वैल्यूज चेंज नहीं होगा. हाँ, am I audible? Yes, sir. हाँ, कांस्टेंट का मतलब है ओवरऑल वैल्यू सेम रहेगा. सो इफ ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा. सो जब और अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा. तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी कम है, मतलब प्रेशर ज्यादा है. अब वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर घट रहा है. फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट ओके फॉर एवरीवन? Is it okay? Yes, sir. Next. देखो नेक्स्ट में नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. तो मैं कुछ एप्लीकेशंस अभी बताने वाला हूँ. फर्स्ट एप्लीकेशन इज, जैसे मानो एक घर है, ठीक है, और इस घर के ऊपर से साइक्लोन जा रहा है, जैसे आम्फान हुआ, कैटरीना हुआ, ये सब जा रहा है. सो ये जो स्टॉर्म जाता है या साइक्लोन जाता है, तो इस साइक्लोन के कारण क्या होता है? द वेलोसिटी इज वेरी वेरी लार्ज. इज इट ओके और नॉट? अरे कुछ तो बोलो हाँ ना, कुछ सुनाई नहीं देता है. तुम लोग क्या बोलते हो? हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. थोड़ा रिस्पॉन्ड करो. As the velocity increase very much, so pressure decrease very much. So if this is the pressure and this is the atmospheric pressure, due to large velocity, pressure is very less. So atmospheric pressure is very very large. So atmospheric pressure is very very large than the atmospheric pressure. तो ये क्या करेगा? रूफ को उठा देगा. So क्या होता है? छोटा छोटा जो झोपड़ी होता है, उसका जो छत है वो उड़ जाता है. Is it clear? Yes, sir. This is the first one. Second one is that अगर ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये एक देखना रेड जोन होता है, और कहा जाता है जब थ्रू ट्रेन पास कर रहा है तो अनाउंसमेंट होता है, प्लीज कृपया रेड जोन से बाहर हो जाए. यहाँ से गैलोपिन ट्रेन या थ्रू ट्रेन पास कर रहा है. इसका क्या मतलब हुआ? गैलोपिन ट्रेन, इसका मतलब है जब ये हाई स्पीड ट्रेन पास कर रहा है, लाइक राजधानी एक्सप्रेस, let the speed is 120 kilometer per hour. Due to high speed, pressure is decreased, very less pressure. Is it okay, everyone?
Yes, वेरी लेस sir. प्रेशर, तो यहाँ का प्रेशर बहुत ही घटा है और सराउंडिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, तो ये प्रेशर ऐसे करके आता है उसको फिल अप करने के लिए। तो कोई अगर यहाँ पे इस रेड जोन के अंदर में है तो वो प्लेटफॉर्म की तरफ धक्का लगने का एक चांसेस होता है, तो वो उससे मर सकता है। तो इसीलिए वो कहता है कि सेफ डिस्टेंस में चले जाइए, मतलब इस रेड जोन से बाहर जाइए। इज इट ओके? Yes, sir. सिमिलरली दो अगर शिप समुद्र में चल रहा है, दे मस्ट मेंटेन अ सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज ऑफ द वेरी हाई स्पीड। ये प्रेशर अगर पी है और बाहर का प्रेशर अगर पी नेट है, तो ये दोनों साइड से प्रेशर के कारण ये एक दूसरे से धक्का लग सकता है। सेम थिंग हैपन फॉर एरोप्लेन ऑल्सो, इफ दे आर मूविंग इन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ये वाला एक दूसरे से ऐसा हो सकता है या ये वाला एक दूसरे का ऐसा हो सकता है। यहाँ का प्रेशर घट गया, दोनों तरफ से धक्का लग सकता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए दे ऑल मेंटेन अ स्पेसिफिक डिस्टेंस। इसके बाद आता है क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच में क्या होता है, क्रिकेट मैच में क्या होता है, जैसे एक बॉलर है, बॉलर मानो फास्ट बॉलर v वेलोसिटी से एक बॉल को थ्रो किया और ये है आर्म हाइट जहां से वो बॉलिंग कर रहा है, ये हाइट जहां से वो डिलीवरी करेगा। अब जब वो डिलीवरी करेगा, जब वो इस शोल्डर से वो बॉल को फेंकता है और फिर जब वो डिलीवरी करता है, डिलीवरी होने से पहले वो फिंगर से बॉल को ऐसे टानता है। तो बॉल को जब ऐसे टाना तो बॉल ऐसे घूमना स्टार्ट हुआ, बॉल मतलब ऐसे घूमते घूमते आगे जाएगा। तो ये बॉल सामने भी जा रहा है और ये एक एंगुलर वेलोसिटी दे दिया बाय द फिंगर, फिंगर से वो ऐसा। नहीं तो अगर फिंगर से नहीं होता तो हम बॉल को ऐसा फेंकता। हम ऐसे क्यों फेंकते हैं? ऐसा फेंकने का मतलब है हम उसको एक ऐसे करके एक, अरे यार इतना जगह छोटा है, ऐसे करने फेंकने का मतलब है मैं इसको एक उल्टा वेलोसिटी देता हूं। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या हो गया, देखो एट द बॉटम हो गया v प्लस आर ओमेगा, एट द टॉप हो गया v माइनस आर ओमेगा। सो देखो क्लियरली बॉटम का स्पीड ज्यादा है, टॉप का स्पीड कम है। तो जहां पे ज्यादा स्पीड वहां का प्रेशर कम होगा, टॉप का प्रेशर ज्यादा होगा। सो प्रेशर ऑफ द बॉटम इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ द टॉप। व्हाई? बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द बॉटम इज, ओहो उल्टा लिखा ना, सॉरी, velocity of the bottom is greater than velocity of the top, so pressure of the bottom is less than pressure of the top। is it ठीक है? ऊपर का प्रेशर ज्यादा, नीचे का प्रेशर कम, ठीक है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब ऊपर से बॉल को प्रेशर दिया जाएगा तो बॉल प्रोजेक्टेड लाइन से पहले गिरेगा। इसीलिए बॉल अगर बहुत ज्यादा स्विंग कर गया तो बैट्समैन सोचता था कि मिडिल बैट से खेलेगा, वो थोड़ा आगे आ जाता है, मतलब एकदम कन्नी में लग के वो कैच आउट हो जाता है स्विंग बॉलर के लिए। तो ये हो गया फास्ट बॉलर के लिए या मीडियम पेसर बॉलर के लिए। दूसरा आता है स्पिनर। देखना स्पिनर लोग कभी भी बॉल ऐसे नहीं फेंकता, स्पिनर लोग ऐसे फेंकता है, ऐसे मुरलीधरन हुआ ऐसे फेंकेगा, फिर उल्टा करके ये नहीं फेंकता, ये फेंकता है। मतलब बॉल को हम इधर नहीं घुमाएगा, बॉल को हम इधर घुमाएगा। मतलब बॉल कैसे घूमेगा, बॉल ऐसे घूमेगा। तो बॉल अगर ऐसे घूमेगा, ये मेरा प्रोजेक्टेड स्पीड है सेंटर का। अब बॉल ऐसे के कारण टॉप का स्पीड क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा v इक्वल्स टू आर ओमेगा, सो v प्लस आर ओमेगा। और बॉटम में क्या हो जाता है, आर ओमेगा। सो बॉटम में क्या हो गया, v माइनस आर ओमेगा। अब तुम देखो वेलोसिटी ऑफ द टॉप इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द बॉटम, सो प्रेशर ऑफ द टॉप इज लेस देन प्रेशर ऑफ द बॉटम। इज इट क्लियर? सो आप किसका प्रेशर ज्यादा है, बॉटम का प्रेशर ज्यादा है। मतलब अब बॉटम उसको क्या कराएगा, ऐसे आसमान में उड़ाएगा। इसलिए देखना जो स्पिनर का बॉल होता है वो हवा में ड्रैग करते हुए जाता है, मतलब लग रहा है कि बॉल थोड़ा लेट से नीचे गिरेगा। जहां जितना जल्दी गिरना चाहिए, फास्ट बॉलर का जितना जल्दी गिरता है उससे उल्टा होता है, यहाँ पे बॉल तैरते हुए जाता है। तुम अगर देखोगे कभी देखना बॉल ड्रैगिंग ऑफ क्रिकेट बॉल बाय द स्पिनर, शेन वॉर्न, मुरलीधरन, अनिल कुंबले, तो वो देखना लिटरली दिखाएगा बॉल जो है ना ऐसे फ्लाइट करते हुए जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, इतना जोर से घुमाता है, नीचे का प्रेशर इतना ज्यादा होता है
कि वो उसको नॉर्मल से ज्यादा ड्राइव उसको डिस्टेंस दे देता है, मतलब उसको फ्लाइट करवा देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So these all are because of the Bernoulli's theorem. इसके अलावा भी एक दो और है जो हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। स्पेशली अगर हम एक टैंक में एक छोटा सा होल क्रिएट कर दे तो पानी जो आता है वो कैसे आएगा, उसका स्पीड क्या होगा, उसका प्रोजेक्टाइल क्या होगा, कब तक टैंक खाली होगा। ये 5-10 मिनट का बात नहीं है, तो मैंने ये सब जो बेसिक था वो कर दिया। नेक्स्ट दिन हम लोग ये सब पढ़ेंगे और इसके ऊपर तुम्हारा सिलेबस में भी है टॉरसेलीज लॉ एंड ऑल। तो नेक्स्ट दिन हम लोग इसको सेकेंड पार्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिर हम लोग विस्कोसिटी वगैरह में जाएंगे या सरफेस टेंशन वगैरह में। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, इज इट ओके एवरीवन? आई एम देन स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।